Hello, welcome to my channel. Good morning, all of you. Today, in previous video, I have discussed about RDBMS and various database terminology. Today, in this video, I am going to discuss about MySQL and SQL exactly. So, the first question is, what is MySQL? See, MySQL is an open source and freely available RDBMS that uses structured query language (SQL). A single MySQL database can store several tables at a time and can store thousands of records in it. एक MySQL के डेटाबेस में बहुत हजारों हजार टेबल्स आप स्टोर कर सकते हैं और एक टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, thousands of records it may have. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। कहाँ से? www.mysql.org से MySQL आप डाउनलोड कर सकते हैं। MySQL was developed by a Sweden-based company, MySQL AB. बाद में इसे अक्वायर कर लिया था सन माइक्रोसिस्टम ने और उसके बाद सन in turn was acquired by Oracle Corporation in 2010. It is fully secured, reliable and fast and possesses better functionalities than many other commercial RDBMSs available in the market. So this is MySQL. MySQL is an RDBMS. Relational Database Management System है ये। Structured Query Language को support करता है। वैसे जितने भी दुनिया में जितने भी RDBMS हैं सभी ऑलमोस्ट SQL क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं और SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि सेट ऑफ कमांड्स प्रोवाइड करता है किस लिए? फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन SQL and MySQL. These differences have been elaborated in various points. See the definition in first point. SQL is a structured query language. It is used to manage relational databases. In the management, there are various things: creation, manipulation, updation, deletion, insertion, and all. MySQL is an open source RDBMS to store, retrieve, modify, and administrate a database using SQL. Administrate का मतलब है कि एक ही डेटाबेस में आप बहुत सारे यूजर्स डिफाइन कर सकते हैं। उन यूजर्स को राइट दिया जा सकता है कि वो डेटाबेस के अंदर का क्या कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। Complexity: you need to learn the SQL language to use it effectively. It is really available through download and installation. Obviously MySQL can be downloaded and installed, but SQL में आपको you have to learn the syntaxes of the commands. Type: SQL is a query language. MySQL is a database software. Support for connector: SQL does not provide any connector. MySQL offers an integrated tool called MySQL Workbench to design and develop databases. Then purpose: to query and operate database system. SQL जो है वो query और database system को operate करता है। Operate में आपका insertion, updation, deletion, modification, everything comes. Allows data handling, storing, modifying, deleting in a tabular format. तो ये कमांड है जो कि डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए है और ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए है MySQL. Uses: SQL code and commands are used in various DBMS and RDBMS systems including MySQL. तो SQL कोड और कमांड्स का यूज करता है DBMS RDBMS सिस्टम में, MySQL में भी. There are so many other RDBMSs that I have told you in previous class. Sybase, Oracle, MS Access and all. FoxPro पहले यूज होती थी, उसमें भी SQL का इस्तेमाल किया जाता था. MySQL is used as an RDBMS database.
अपडेट्स, द लैंग्वेज इज फिक्स्ड एंड कमांड रिमेन सेम। इसमें जो भी कमांड है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कमिट, रोल बैक, सारी फिक्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसका सिंटैक्स फिक्स है, सभी RDBMS उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन MySQL गेट्स फ्रीक्वेंटली अपडेटेड। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL। नाउ फीचर्स ऑफ SQL, बिफोर गोइंग टू सी द फीचर्स ऑफ SQL, एक्चुअली SQL जो है वो 1970 में, in 1970 not 79, this is by mistake done, in 1970 SQL was developed by Donald D. Chamberlain and Raymond F. Boyce at IBM, and SQL is fourth generation non-procedural language to create, manipulate and process the database। नॉन प्रोसीजरल का मतलब इसमें प्रोग्रामिंग आप नहीं करते हैं SQL में, सिंपली यू हैव टू learn the syntax of the command and write the command accordingly, सिंगल लाइन कमांड आप लिखते हैं। फॉर्म फीचर्स ऑफ SQL, it can retrieve, insert, update the records in a database। records आप retrieve कर सकते हैं, insert कर सकते हैं, update कर सकते हैं database में, और database का part जो है table होता है, view होता है, तो that means हम table और views में interact कर सकते हैं through SQL। we can create a new database, we can create new tables in the database, we can create views in the database। So these are the basic features of SQL, what SQL can do। So moving to next, advantage of SQL, इसका advantage क्या है? Number one, easy to use, it is very easy to learn and use। volume, large amount of database can be handled quite easily, बहुत बड़ा huge amount of database having number of tables, and within each table, हर table में thousand and thousand of records can be manipulated and handled very easily। नो कोडिंग रिक्वायर्ड, इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, ये एक यूनिफाइड लैंग्वेज है। इसमें एक कमांड का स्ट्रक्चर होता है, उस कमांड के थ्रू हम लोग जो है डाटाबेस हैंडल करते हैं। पोर्टेबल, इट इज़ कंपेटेबल विद अदर डेटाबेस प्रोग्राम्स लाइक MS Access, DB2, Oracle, Sybase, MySQL सर्वर एक्सेट्रा। इन सभी डेटाबेसेस में SQL का इस्तेमाल होता है। SQL ये सभी डेटाबेसेस एक्सेप्ट करते हैं। दुनिया में कोई भी डेटाबेस वेंडर अगर कोई DBMS RDBMS सॉफ्टवेयर बनाता है, तो पहले उसको वो SQL कमांड को उसमें इनबिल्ट करता है और तब डेवलप करता है। लिंकिंग, SQL can be linked with most of the other high-level languages, which makes it the first choice of database programmers। आप लिंक कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ, पाइथन के साथ आप SQL की कनेक्टिविटी आपने पढ़ा, इसी तरह से जावा के साथ MySQL की कनेक्टिविटी होती है, जिसमें प्रोग्रामिंग में ही हम लोग SQL कमांड को मर्ज कर देते हैं, एंड दैट SQL कमांड ऑटोमेटिकली गोज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस फ्रॉम विद इन द प्रोग्राम। तो इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिंकिंग की जा सकती है, मर्ज की जा सकती है। केस सेंसिटिविटी, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, कैपिटल और स्मॉल दोनों इसके लिए सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पावरफुल लैंग्वेज है ये, ऑल SQL ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एट प्रिस्क्राइब्ड एंड फिक्स्ड लेवल। इनका सबका जो है एक प्रिस्क्राइब्ड लेवल है, फिक्स्ड लेवल है, उसमें वेरिएशन नहीं किया जा सकता है। एक स्ट्रक्चर है इनका, एक सिंटैक्स है, वी हैव टू फॉलो दैट सिंटैक्स स्ट्रिक्टली। सो रिलायबल भी है ये। SQL प्रोवाइड्स अ हाई लेवल of well-defined set of commands that provides a desirable result without any ambiguity। Freedom of data abstraction, SQL provides a greater degree of abstraction freedom as compared to any other procedural language। कंप्लीट लैंग्वेज फॉर द डेटाबेस, डेटाबेस की हैंडलिंग में ये कंप्लीट लैंग्वेज है। इसमें आप इसकी कमांड्स जो हैं दे आर सफिशिएंट एंड एनफ टू एक्सेस एनी डेटाबेस, चाहे क्रिएट करना हो, चाहे आपको मैनिपुलेट करना हो, चाहे आपको रिट्रीव करना हो, चाहे आपको अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, या डेटाबेस बनाना हो, ड्रॉप करना हो। every facility is provided through SQL command, so it is a language for the database and complete language you can say। Now
After this, you can see SQL is categorized into 3-4 categories. जो बेसिक कैटेगरीज हैं उसकी 3 है, DDL, DML एंड TCL, और एक DCL भी कैटेगरी है। इसको देख लें एक एक करके। जो आपका DDL है ये टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेबल का जो डेटाबेस स्कीमा है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम चाहिए, कॉलम नेम, और अगर मान लीजिए मैं कॉलम नेम लेता हूँ नेम, तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। डेटा टाइप वेर कैर या कैरेक्टर या स्ट्रिंग आप कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग तो यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह पर कैर और वेर कैर हैं। तो डेटा टाइप क्या होना चाहिए, और नेम कितना बड़ा से बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्हाट इज द साइज ऑफ द नेम कॉलम, तो वो डिफाइन करना। और नेम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि नेम जो कॉलम है उसमें वी कैन नॉट इनपुट न्यूमेरिक वैल्यूज, तो उसे कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट कौन से उस पर लगाए जा सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डन यूजिंग DDL कमांड्स। So creating of table, deleting of table, complete table and modifying the structure of the table. Creating of table में क्या आता है, डिफाइनिंग द टेबल स्ट्रक्चर। एंड टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल स्ट्रक्चर में कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज एंड कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल ऑन दैट कॉलम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर DDL कमांड्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वी डिफाइन द टेबल स्कीमा हेयर। टेबल स्कीमा का मतलब होता है टेबल स्ट्रक्चर। DML आपकी जो कमांड्स हैं वो जनरली जो है क्या, व्हाट एवर डेटा रो रिलेटेड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। जो आपने टेबल बनाया है, टेबल इज जस्ट कंटेनर जिसमें आप कॉलम डेफिनेशन देते हैं, और उसके अंदर जो कंटेंट है, जो वैल्यूज हैं, जो डेटा आइटम्स हैं, जो रोज हैं, उनका जो मैनिपुलेशन, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और रिट्रीवल किया जाएगा वो DML के थ्रू किया जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके थ्रू हम लोग उसमें रो इंसर्ट कर सकते हैं, रोज की वैल्यूज जो है उसे अपडेट कर सकते हैं, कॉलम की। कोई भी रो डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, कोई रो रिट्रीव करना है तो रिट्रीव कर सकते हैं। DCL कमांड में 2 कमांड्स हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट क्या करता है कि मान लीजिए ये नेटवर्क सिस्टम है आपके, MySQL सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं आप। तो क्लाइंट, कौन कौन से क्लाइंट आपके डेटाबेस में लॉग ऑन करेंगे, उन क्लाइंट्स के यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या हैं, उनको क्या राइट है डेटाबेस में से एक्सेस करने का, और क्या चीज़ का राइट नहीं है, कौन कौन सी टेबल वो एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी टेबल वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, which part of database they can access from the server and which is not allowed to be accessed। उसके लिए कमांड्स है यहाँ पर DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और वो काम करते हैं वो ग्रांट कमांड से और रिवोक कमांड से। ग्रांट से प्रिविलेज दिए जाते हैं यूजर्स को, और रिवोक कमांड से प्रिविलेज वापस लिया जाता है। TCL कमांड्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं इसको। इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन पूरा हो करके और वो डिस्क में सेव हो जाए, और उसके लिए कमिट कमांड देते हैं, और वो रोल बैक हो जाए, अनडू हो जाए, बाय मिस्टेक आपने कुछ कर दिया है तो उसे रोल बैक किया जा सकता है। और TCL कमांड्स आर ओनली एप्लीकेबल ऑन DML स्टेटमेंट्स। आपने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किया है तो उसे कमिट और रोल बैक किया जा सकता है। आप जो है क्रिएट टेबल कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल कर रहे हैं, तो उसे रोल बैक नहीं किया जा सकता है, उसे कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इट इज ऑटोमेटिकली कमिटेड। तो आप DML स्टेटमेंट्स पर TCL कमांड्स जनरली लगाते हैं, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन DML के थ्रू होता है, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। टेबल में रोज का जो ट्रांजैक्शन है वो DML कमांड्स के थ्रू ही होता है। So these are various set of commands you can say. Categorized SQL language is categorized, SQL commands rather is categorized into 4 categories: DDL, DML, DCL and TCL. And here especially DDL and DML is differentiated. ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि what is difference between DDL and DML, और जनरली पूछा भी जाता है थ्योरी में। तो DDL की फुल फॉर्म आप लिख देंगे, इट इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा।
When we talk about database schema, that means we are talking about the table structure, and when we are talking about table structure, that means कौन कौन से उसमें कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या है टेबल में, और उनका साइज क्या है, और उन पर लगा हुआ कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नाउ इट इज़ यूज टू पॉपुलेट एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। डेटाबेस में आप कोई भी कंटेंट डालना है, डेटा डालना है या उसे रिट्रीव करना है तो DML कमांड्स का यूज़ करेंगे। इट इज़ नॉट क्लासिफाइड फर्दर, DDL को क्लासीफाई नहीं किया गया है, और DML में फर्दर क्लासिफिकेशन है प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। इसे इसमें आपकी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, प्रोसीजर भी बनाई जा सकती है और नॉन प्रोसीजरल भी है, ठीक है। नाउ नॉन प्रोसीजरल तो हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें डायरेक्ट कमांड आप लिखते हैं। प्रोसीजरल में PL SQL है एक आपका, जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, प्रोसीजरल नहीं है हमारे में, तो नॉन प्रोसीजरल है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट कमांड, 4 DML आपको यूज़ करने हैं। सो हियर आर सम कमांड्स रिटन इन दिस कैटेगरी: क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड कमेंट, रीनेम। कमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप ये 3 कमांड्स आपके सिलेबस में हैं। यहाँ पर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये 4 कमांड आपके सिलेबस में। SQL स्टेटमेंट्स कांट बी रोल बैक। मैंने बताया आपको DDL को रोल बैक नहीं किया जा सकता है, रोल बैक और कमिट जो है केवल DML पे लगाए जाते हैं। DDL कमांड्स अफेक्ट द इंटायर डेटाबेस ऑफ द टेबल, क्योंकि ये टेबल का स्कीमा डिफाइन करता है। व्यूज क्रिएट किए जाते हैं, टेबल क्रिएट की जाती हैं, तो ऑब्वियसली डेटाबेस का जो वॉल्यूम है वो किससे अफेक्ट होगा, टेबल क्रिएशन और टेबल डिलीशन से होगा। पूरा वो उसमें का ऑब्जेक्ट है, आपके डेटाबेस का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है टेबल और व्यूज़ जो DDL के थ्रू बनाए जाते हैं। यहाँ पर कमांड अफेक्ट वन और मोर रिकॉर्ड इन द टेबल, टेबल के अंदर जो रो हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उसको अफेक्ट करता है आपका DML। नाउ वी विल सी वेरियस कमांड्स ऑफ ईच कैटेगरी। सबसे पहले DDL कमांड्स आप देख लें, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, ड्रॉप और ट्रंकेट ये 4-5 कमांड्स आपको पढ़नी है, और इनके सिंटैक्सेस आपको पढ़ाए जाएंगे डिटेल में इन द कमिंग सेक्शन प्रैक्टिकली। यूज टू क्रिएट टेबल और डेटाबेस, क्रिएट टेबल स्टूडेंट क्रिएट हो जाती है। इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, पूरी कमांड नहीं लिखी हुई है यहाँ पर। दैट विल बी डन इन द प्रैक्टिकल सेगमेंट, पूरा सिंटैक्स लिख करके बताऊंगा और वहाँ पर आपको पूरी कमांड बताऊंगा। ऑल्टर टेबल किस लिए होता है, कोई टेबल आपने बनाया है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्कीमा है, उसे मॉडिफाई करने के लिए हमें ऑल्टर कमांड, कोई कॉलम ऐड करना है उसमें, कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई कॉलम की डेफिनेशन चेंज करनी है। डेफिनेशन का मतलब वही कॉलम का नाम, डेटा टाइप, साइज और कंस्ट्रेंट। रीनेम, यूज टू रीनेम अ टेबल, किसी भी टेबल का दूसरा नाम रखा जा सकता है। रीनेम स्टूडेंट टू स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल। Drop, any table can be deleted permanently from the database, so drop table, table name. Truncate, this also does the same thing, to delete the table from the database, truncate table, table name. Now DML commands, insert, update, delete and select, ये आपके 4 DML statements हैं, चारों आपको पढ़ने हैं। This is the part of your syllabus. Used to insert new rows into the table. Now it will talk about the rows, records within the table. Structure की बात हो गई DDL के थ्रू, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, to insert rows, to insert record, to manipulate records within the table, जिसके अंदर हमारा actual data होगा within the rows। तो इसमें आप कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, वैल्यूज क्या डाल दिया, 1 और अनूप डाल दिया। तो ये वैल्यू के बारे में बात करता है, कंप्लीट रो के बारे में। रो एक यहाँ पर यूनिट है, समझ लीजिए। द कंप्लीट यूनिट कैन बी इंसर्टेड, डिलीटेड, अपडेटेड और रिट्रीव्ड। देयर आफ्टर अपडेट में आपका क्या होगा, जो रो के अंदर कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आप अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं ऑन लेटर स्टेज आफ्टर इंसर्शन।
If there is something left within a particular row, within some column, you can make necessary changes, that is updation. Update student टेबल का नाम हो गया set, ये कॉलम है, एस नेम अनुराग कर दिया उन्होंने, कुछ और भरा रहा होगा या नहीं भरा रहा होगा। वेयर एस नेम लाइक अनूप, जहां पर अनूप था वहां पर इन्होंने अनुराग कर दिया। प्लेस सेलेक्ट टू रिट्रीव रोज फ्रॉम द टेबल, टेबल में से आपको कुछ डाटा रिट्रीव करना है, निकालना है, क्वेरी करना है, इंक्वायर करना है, चेक करना है, तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर ये कमांड क्या करेगा, उस टेबल के सारे कॉलम और सारे रोज को डिस्प्ले करेगा आपकी स्क्रीन पर। ये केवल डिस्प्ले करता है, कोई डेटाबेस टेबल में कोई भी चेंज नहीं करता है। चेंज करने के लिए यही तीनों दो कमांड है, इंसर्ट और अपडेट, ये चेंज करेंगे, डिलीट जो है परमानेंटली किसी भी रो को डिलीट कर देगा। So I think it is quite simple and well understood by you all. Now let us move to DCL. DCL में ग्रांट और रिवोक मैंने आपको बताया दो कमांड्स हैं, इससे आप यूजर्स को राइट दे सकते हो और इससे आप वापस ले सकते हो राइट। जैसे यहाँ पर ग्रांट क्रिएट टेबल टू यूजर वन, मान लीजिए आपका नेटवर्क MySQL है जिस पर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूजर वर्किंग ऑन द सेम डेटाबेस सर्वर MySQL, तो उसमें आपने एक यूजर वन डिफाइन किया है। देयर आर सर्टेन कमांड्स दैट इज यूज्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, द टॉप लेवल यूजर ऑफ डेटाबेस, तो वो जो है यूजर्स को डिफाइन कर सकता है और उनको डिलीट भी कर सकता है। तो एक यूज़र उसने डिफाइन किया यूज़र वन, उसको वो क्या राइट दे रहा है, क्रिएट टेबल वो लिख सकता है, ना तो इंसर्ट अपडेट डिलीट ये कोई भी उसको राइट नहीं है, केवल टेबल क्रिएशन का राइट है। और जब भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को उससे एक्सेस प्रिविलेज वापस लेना होगा तो वो रिवोक कमांड का यूज़ करेगा, लिखेगा रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम यूज़र वन, यानी कि उसने क्रिएट टेबल करने का राइट यूज़र वन से वापस ले लिया। नाउ यूज़र वन इज़ नॉट एबल टू क्रिएट टेबल इन द डेटाबेस। तो इस तरह से एक्सेस राइट देना ग्रांट कमांड से और एक्सेस राइट वापस लेना फ्रॉम द यूजर्स रिवोक कमांड से किया जा सकता है। इसे हम DCL कमांड की कैटेगरी में रखते हैं। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज इट शुड बी, यहाँ कंट्रोल लैंग्वेज रह गया है, डाटा इज लेफ्ट, सो इट इज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। नाउ TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, एक कंप्लीट यूनिट ऑफ टास्क इज नोन एज ट्रांजैक्शन। आप कोई काम करने के लिए जाते हो तो वो जो पूरा टास्क करते हो वो एक ट्रांजैक्शन है। जैसे आपसे कहा कि अकाउंट ए में से 1000 रुपये निकाल करके अकाउंट बी में डाल देना, तो ये एक ट्रांजैक्शन होगा, कंप्लीट ट्रांजैक्शन। जैसे आप ATM में अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपसे कहा गया 1000 रुपये निकाल करके लाना है, तो आप ATM कार्ड में जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, सिस्टम जो भी एक्टिविटी इंटरनली करता है और उसके बाद आपके पास 1000 रुपये वापस आ गए, ATM कार्ड आपने वापस कलेक्ट कर लिया, आपके अकाउंट में 1000 माइनस हो गए और जो बैलेंस है आपके वो करंट बैलेंस में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया। इतना सारा काम जो है एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को परमानेंटली हमारे डेटाबेस में सेव कर देने के लिए हार्ड डिस्क में सेव हो जाए वो, कि उसमें कोई दूसरा और कोई दखलंदाजी ना दे सके, उसे अंडू ना कर सके, उसे चेंज ना कर सके, उसके लिए कमिट कमांड है। once your transaction is done, thereafter after issuing commit command it will be saved, whatever are the latest changes done in the database will be saved on the disk permanently and that cannot be undo, उसे आप undo नहीं कर सकते हैं। तो commit command क्या करती है, हमारे ट्रांजेक्शन को परमानेंटली डिस्क में सेव कर देती है, सो दैट नो वन कैन डिस्टर्ब इट, नो वन कैन करप्ट इट, नो वन कैन मेक एनी चेंज ऑन इट। रोल बैक क्या करता है, रोल बैक अंडू कर देता है चेंजेस को। मान लीजिए आपने कुछ इंसर्शन कर दिया गलती से, कुछ डिलीशन कर दिया, कुछ अपडेशन कर दिया, कुछ इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ आपने DML स्टेटमेंट के थ्रू, इंसर्ट अपडेट डिलीट के थ्रू डाटाबेस में कुछ चेंजेस किए, some changes are required but some changes are not required, या complete whatever you have done is not required, so you will roll back। roll back क्या करेगा, आपके ट्रांजेक्शन को पिछली स्टेज में ले जा करके
और वहाँ पर रख देगा। तो व्हाट इज रोल बैक? इट अनडू द चेंजेस दैट हैज बीन डन इन द डेटाबेस completely. The database goes to the previous situation. सेव पॉइंट क्या करता है? पार्शियल रोल बैक करता है। पार्शियल रोल बैक का मतलब होता है आपने 10 कमांड इशू की हैं या 10 टास्क छोटे छोटे किए हैं, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन। अब बाद में आप चाहते हैं कि कुछ कमांड रोल बैक हो जाए, कुछ कमांड परमानेंट हो जाए, तो उसके लिए आपको बीच में, ट्रांजैक्शन के बीच में, उस प्रोसेस के बीच में जगह जगह सेव पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे, so that you can roll back up to certain save point and rest of the commands can be committed. So part of transaction can be committed and part of transaction can be rolled back by putting the break points in between the transaction. That is called as save point. Save point break point define करने का काम करता है transaction के बीच में। और जहाँ तक सेव पॉइंट तक आप रोल बैक कर सकते हैं, उससे सेव पॉइंट से पहले का डाटा आप कमिट कर सकते हैं। तो इसे हम पार्शियल रोल बैक के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि TCL कमांड जो है वो केवल DML पर यूज होती है। DML का मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट अपडेट डिलीट पर यूज होती है। सेलेक्ट तो क्वेरी करने के लिए होता है, डाटा को खाली इंक्वायरी करता है। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट पर ही आपकी रोल बैक, सेव पॉइंट और कमिट काम करती है। अदरवाइज और दूसरी जो DDL कमांड्स हैं, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, रीनेम टेबल, इस पर रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट वर्क नहीं करेगा। रिमेंबर इट, दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर। Now, here are the advantages of MySQL. MySQL and its advantages. MySQL is most popular open source relational database management system. It is one of the best RDBMS being used for developing various web-based software applications. MySQL operates upon client-server architecture, in which the server runs on the machine containing the databases and client connects to the server over a network. अगर आपका डेटाबेस है एक ही मशीन पर, तो उसके क्लाइंट कौन कौन से हैं? उस डेटाबेस को जो इस्तेमाल कर रहा है वो उसका क्लाइंट है। अगर ये नेटवर्क सिस्टम है तो एक सिस्टम आपका सर्वर पर काम कर रहा है, सर्वर की तरह, MySQL सर्वर की तरह, और बाकी जो सिस्टम है वहाँ पर यूज़र बैठे हुए हैं, क्लाइंट बैठे हुए हैं। किस लिए? टू एक्सेस द डेटाबेस फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर। तो client request for a particular part of the database from the server, and it is the server which communicate with the clients through SQL queries। इंटरेक्शन के बाद वो क्या करता है, डेटाबेस में से उस पार्ट को, उस मटेरियल को, उस चीज को क्लाइंट को रिटर्न करता है। यानी क्लाइंट पुट्स द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ SQL queries, and it is the MySQL server which executes the SQL queries, and whatever is the result of those SQL queries, that is observed by the MySQL server, and the same content is picked up from the database by the server and is provided, these services are provided back to the clients of the network, on the network. But अगर एक ही मशीन है तो एक ही मशीन पर हमारा MySQL भी रन कर रहा है और क्लाइंट्स भी रन कर रहे हैं। उसमें क्लाइंट्स कौन से हैं? मान लो आपने VB में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है और वो डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है MySQL का, तो आपका विजुअल बेसिक का जो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो उसका क्लाइंट हो गया MySQL का। आपने पाइथन में एक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है जो MySQL का डेटाबेस एक्सेस कर रहा है, तो पाइथन का जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो उसका क्लाइंट हो गया और MySQL ऑब्वियसली सर्वर हो गया। इस तरह से MySQL और सर्वर और क्लाइंट काम करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसकी करस्पॉन्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाउ समझ में आ गया होगा आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। रिक्वेस्ट मीन्स डज नॉट फोल्ड हैंड्स, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट नहीं करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ SQL क्वेरीज, क्योंकि डेटाबेस सर्वर and RDBMS softwares they only understand SQL queries, SQL commands को ही वो एक्सेप्ट करता है। Now advantage of MySQL, reliability and performance. MySQL is very reliable and high performance relational database system. Modifiable, being an open source software,
इसमें जो है लोग चेंजेस कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग जो भी हुई है सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स कोड इज इजीली मॉडिफाइबल एंड कैन बी रिकम्पाइल्ड एज इट्स एसोसिएटेड सोर्स कोड इज अवेलेबल। बिकॉज ये ओपन सोर्स है, इजीली डाउनलोड किया जा सकता है और साथ में इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड करके उसमें कुछ चेंजेस करके फिर से रिकम्पाइल किया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हैं। Multi-platform support. MySQL supports several different platforms like Linux, Mac, OS X and MS Windows. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका MySQL चल सकता है। Powerful processing capabilities. MySQL is a powerful, easy, compatible and fast RDBMS. It can handle complicated corporate applications and processing requirements. किसी भी एप्लीकेशन में MySQL आपका रन हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो, MySQL कैन बी कनेक्टेड विद दैट। Integrity checks. MySQL provide various integrity checks in order to restrict user input and processing. कौन कौन सा यूजर आपके डेटाबेस में लॉग ऑन कर सकता है थ्रू यूजर आईडीज एंड पासवर्ड एंड एक्सेस राइट्स दे करके उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डेटाबेस एंड specific access right are allowed to the particular user who is going to log on into the database। तो इसमें integrity checks रहता है, इसलिए आपका database remains as it is without any corruption and without any theft। Authorization. MySQL provides DDL commands to check user authentication and authorization by restricting access to relation and views। कौन सा रिलेशन, कौन सा टेबल, कौन सा व्यू कोई पार्टिकुलर यूजर एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता है, उसके लिए ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स DDL कमांड्स में की जा सकती हैं। एक्सेस दिए जा सकते हैं, एक्सेस वापस लिए जा सकते हैं, कौन सी टेबल में वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है विद इन ए डेटाबेस, नहीं कर सकता है पार्टिकुलर यूज़र। तो इस तरह से उस यूज़र की ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड है, और एक्सेस राइट लेने देने के लिए हमारे पास DCL कमांड, जैसे आपको ग्रांट और रिवोक बताया था, इसी तरह से देयर आर मेनी अदर कमांड्स अवेलेबल फॉर द पर्पस। सो आई थिंक you might have understood the difference between SQL and MySQL very well। I have tried my level best to make you understand the things well। जिसमें आपने 4 कैटेगरीज कमांड्स की पढ़ी हैं, DDL, SQL कमांड्स की DDL, DML, TCL एंड DCL, that is data definition language, data manipulation language, transaction control language and डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये 4 कैटेगरीज ऑफ कमांड पढ़ा आपने। SQL में और MySQL में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले सेगमेंट में हम लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरह से हम DDL कमांड्स, DML कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। एंड आई थिंक it is sufficient for this video। If you have understood the things well, if you have liked the video, please like, share and subscribe the video। We'll meet in the next coming video with the practical segment of MySQL and SQL queries। Thank you so much, thank you very much।